Good morning, students. So class 10, today we are going to discuss about the solid waste. You'll come to know that what I am going to discuss in today's video. There are different types of solid waste. Though the recycling of all these solid wastes are not very easy. सारे के सारे सॉलिड वेस्ट को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं. But in today's polluted world, these are necessary to be learnt. इन चीज़ों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है. We should know the methods of handling wastage. It has become essential. Why? If we won't learn, अगर हम इसे नहीं सीखते हैं, then day by day the whole world will get polluted and very difficult to live in. And it would become very difficult to live in. So, management of these solid wastes are followed by 3 R's. हमने सुना था ना 3 R's के बारे में, recycle, reuse and reduce. Recycle, reuse and reduce. That we are going to learn in the next chapter, management of natural resources. But in this chapter, I am going to talk about the different types of solid wastes. Means what? That we are going to discuss today biodegradable substances and non-biodegradable substances. We are going to discuss biodegradable substances and non-biodegradable substances. What are they? How can we explain about these all? Let us talk first about the biodegradable substances. Or we can say that the solid wastes can be divided into 2 parts. इन्हें हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है. ऑल दो सब्सटेंसेस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इन नॉन टॉक्सिक और नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऐसे वो हर चीज़ जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एंजाइम से ब्रेक कर दें नॉन पॉल्यूटेड और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, इसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. What do we say? Biodegradable substances. Like we can say all organic substance, plants, animals, dead animals or some other organic materials that can be broken down into simpler matter. इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं और वो जो है नॉन पॉल्यूटेड होता है, नॉन टॉक्सिक होता है. ये नॉन पॉल्यूटेड भी होता है और नॉन टॉक्सिक भी होता है. समटाइम्स व्हाट हैपन, दीज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर रिसाइकल्ड. They are recycled and nutrients are returned back. कभी कभी ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं जब वो ब्रेक करते हैं तो वो रिसाइकिल हो जाते हैं और उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना उन्हें हम फिर से यूज़ कर लेते हैं. कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकती हूँ दैट फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोगैस. ये बायोगैस जो है ना वो काऊ डंग से बनता है ना. तो काऊ डंग के न्यूट्रिएंट्स को हम यूज़ करके बायोगैस का निर्माण करते हैं. So is it turned back or not? Then second thing is this preparation of, we can tell that another example we can give, that preparation of compost. These composts are made by the vegetable pellets or vegetable wastage. हम इन कंपोस्ट को वेजिटेबल वेस्ट से बनाते हैं. वेजिटेबल का यूज़ भी हुआ, उसके वेस्ट को हमने डिग्रेड करके कंपोस्ट बनाया. देन वी आर अगेन गोइंग टू यूज the nutrients which are present in vegetable wastage. So this can be recycled without polluting the environment. But do you know, we cannot digest coal, we cannot digest plastic, we cannot digest glasses, we cannot digest metallic cans. Why? Or any metallic items. हम इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी डू नॉट हैव बायो कैटलिस्ट.
Biocatalyst means what? Enzymes in our body to break these substances. हमारे पास वैसे एंजाइम्स नहीं हैं जो कि इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके या ब्रेक डाउन कर सके. सो वैसी हर चीज़ जिनको ब्रेक ना किया जा सके, दैट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, दैट कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड. इन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, पर इन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. What they are called? They are called non-biodegradable substances. So they can't be managed. They can't be recycled. इन्हें हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कैंस, सिल्वर फॉइल, आयरन, ग्लास, प्लास्टिक, और यू कैन से दैट रेडियो एक्टिव वेस्टेज. ये सारी चीज़ें जितने भी हैं, कोल, इन सभी चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, बट डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. एंड दे आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स. ये मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे एनवायरमेंट के लिए. किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए ये एक मेजर पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं. So what should be done? So what they are called? They are called non-biodegradable substance. So now we are going to discuss about non-biodegradable substances. अब हम इनके बारे में बात करेंगे. तो ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये बहुत समय तक रहते हैं. दे लिव इन द environment for longer period of time if they are not recycled or not reused. And what are these substances? They are pesticides, they are insecticides, they are radioactive substances, they are plutonium, they are uranium, plastic, coal, glass. There are so many examples of non-biodegradable substances. So what can be done? That can be recycled and reused means what? Managed properly. इनके मैनेजमेंट को सीखने की ज़रूरत है. If we will learn how to manage these all things, then the world will be pollution free. सो यू मस्ट हैव हर्ड नो, बहुत बार आपने अभी सुना होगा कि डिफरेंट कलर्स के डस्टबिन्स हैं. कहाँ हमें गीले कचरे डालना है, कहाँ हमें सूखा कचरा डालना है, कहाँ हमें प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डालना है, कहाँ हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डालना है. सो इफ़ वी लर्न, द होल वर्ल्ड, द क्लीन वर्ल्ड इज आवर्स. दैट्स ऑल. सो नाउ कैन वी एक्सप्लेन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिफरेंसेस now or not? Yes, we can. अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि what are the differences between biodegradable and non-biodegradable substances? The difference between biodegradable and non-biodegradable substances are biodegradable substances can be broken into smaller pieces with the help of enzymes, and that can't be broken. इसे हम नहीं ब्रेक कर सकते हैं. इट्स ओके. ये जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल में एंटर करते हैं. दे एंटर इन बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड वी गेट इट बैक, और हम इन्हें वापस पा लेते हैं. बट दे डोंट एंटर इन बायोजियोकेमिकल साइकिल. इट्स ओके. दे आर द पॉल्यूटेंट्स विच कैन बी ब्रोकन. इन्हें हम इसे हम ब्रेक कर सकते हैं. दे आर द पॉल्यूटेंट्स ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये ज़्यादा हार्म नहीं करते हैं, बट दे आर ऑलवेज हार्मफुल. देन इट कैन बी ट्रीटेड. इसे हम सॉइल में या वाटर में डिस्चार्ज करने से पहले ट्रीट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, उसके बाद हम डिस्चार्ज कर सकते हैं. बट दे कांट बी ट्रीटेड. दे कांट बी ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग, बट येस दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड. इन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं. दे डू नॉट पोसेस
they do not persist for a longer period of time in the environment because they are broken down with the microorganisms. तो ये बहुत देर तक ना हमारे इन्वायरमेंट में परसिस्ट नहीं करते हैं, पर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में दे परसिस्ट. लॉन्ग परसिस्टेंसेस दे, बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? यूरिन, फीकल मैटर, ऑल द फीकल मैटर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स and many other organic substances can be agricultural residue. We can say no, agricultural residue मतलब जितनी भी कृषि से संबंधित जितने भी वेस्ट हैं वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ब्रेक किए जा सकते हैं. लेकिन अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल दे तो दे आर प्लास्टिक, दे आर कोल, दे आर ग्लासेस, they are radioactive waste like uranium, plutonium, arsenic. Then if we talk about pesticides and insecticides, DDT, BHC, these all are the examples of non biodegradable substances. So I hope you people have understood about the biodegradable and non-biodegradable substances. If you have understood, then I request you, please prepare this topic, learn it well, make the notes and get ready for the examination. And don't forget to like, subscribe and write the comment. Thank you all of you.